Okay. Yes, so firstly we had to complete our question answers of the third chapter of history. Long questions we were there, right? Ma'am, geography chapter 4. Fourth chapter of geography, which was mineral and power resources. Page number 128 पर आ जाइए. 138. 128. So yes, so we are going to mark the long questions. First question is, if you know the answer, you can just raise your hands up. First Nobody हो गया. will shout. Good morning, ma'am. Beta, let me repeat the first question. Very good morning. Yes, Tarun, what do you want to say? Speak up, Tarun, if you want to say something. What do you want to ask? Ma'am, first हो गया था ना? It's okay, beta. We will mark it once if anybody is there. Skip हो गया था तो एक बार हम start कर लेते हैं दोबारा से first वाले question से mark करेंगे. So the first question is, describe the main minerals found in India. Describe the main minerals found in India. Do you remember that I had shared a video in the previous class regarding that? Yes? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ma'am. In that May I video, tell the we answer? had discussed about the availability of minerals in different places in India, है ना? तो आपको करना क्या है? इस question का answer you will find at page number 131 and page number 132. Already I told you how you will solve it. एक पैटर्न मैंने आपको इसके लिए पहले भी बताया था किस तरीके से आपको करना है. आप डिफरेंट नेम ऑफ मिनरल्स लिखेंगे एंड इन फ्रंट ऑफ दैट आप उनके स्टेट्स, 4 नेम्स ऑफ स्टेट्स, कोई भी 4 स्टेट्स के नेम आप वहां पर लिख देंगे, है ना? पैटर्न याद है हमें कैसे करना है? देखो, आपको ऐसे टेबल बनाने के लिए मैंने बोला था, यहाँ फर्स्टली यू विल राइट द हेडिंग मिनरल्स फाउंड इन इंडिया. यहाँ पर नेम ऑफ मिनरल्स लिखेंगे आप और यहाँ पर सामने नेम ऑफ स्टेट्स लिखेंगे आप. ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आपने हेडिंग लिखा है मिनरल्स इन इंडिया. ठीक है? यहाँ पर आपने लिख दिया गोल्ड. और गोल्ड कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में? बेसिकली इन तमिलनाडु. तो यहाँ पर आपने लिख दिया तमिलनाडु. You can write कर्नाटका, आंध्रा, द नेम ऑफ स्टेट. ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर ऐसे लाइन मार्क कर दीजिए इस तरीके से. नेक्स्ट आप लिखेंगे सॉल्ट. सॉल्ट कहाँ कहाँ मिलता है तो आप यहाँ पर लिख देंगे राजस्थान, गुजरात. गॉट द पैटर्न नाउ? किस तरीके से आपको सॉल्व करना है? आई हैव बोर्ड एट बैक साइड. अगर इस पर समझ में नहीं आ रहा है तो आई कैन राइट देयर, बट सम students were saying that ma'am we are getting a blur image of that board. That's why I'm writing or I'm sharing this whiteboard on your screen. If it is clearly visible, tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I have done. समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो फिर आगे अभी कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, come at question number 2, which is how are non-conventional resources useful to us?
नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है. सो यस, रिया माथुर इज रेजिंग हर हैंड. यस बेटा, यू कैन स्पीक अप. Good morning, ma'am. Very good morning, Riya. Tell me your answer. Ma'am, on page number 34, under the heading of non-conventional resources, first paragraph, they are known as renewable resources and because their supply never run out. In points, ma'am, in points we can write, ma'am, first point, they are known as renewable sources of energy because their supply never runs out. Second point, they are eco-friendly sources of energy as they do not pollute the environment. Right. Third, energy stored in sunlight, wind, flowing water, sea waves, geothermal heat, and biomass can be converted into heat or electricity. Very good, Riya. This is the right answer. Everyone, yes, you can come at page number 134. Non-conventional resources. You will have find a heading there. Page number 134. Heading non-conventional resources. And it will be good if you write the answer in points, not in paragraph. तो बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ में आंसर ना करके आप अगर पॉइंट में यू विल एक्सप्लेन दैट, इट विल बी बेटर. ठीक है. सो वी कैन राइट हियर 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स में आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो रहा है. देखिए, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, हियर इज अ पैराग्राफ. दे आर नोन एज renewable source of energy because their supply never runs out. They are eco-friendly. ये जो runs out है, यहाँ तक आपका first point complete होता है. Then second point will start from they are eco-friendly sources of energy as they do not pollute the environment. This will be your second point. Third point, energy stored in sunlight, wind, flowing water, sea waves, geothermal heat, and biomass can be converted into heat or electricity. So, within 3 points, you can complete your answer. Did you get that? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. So, we are continuing with the third question, which is, mark कर लीजिए second वाला, उसके बाद में third question पर हम आ रहे हैं. This is how can we conserve minerals? It's a very simple question. So yes, Bhavanchi, you raise your hand first. Tell me. Ma'am, page number 133. Okay, at page number 133. Conservation of minerals. So we have to write it completely. No, ma'am. मैम, मैंने तो पूरा मार्क नहीं किया, पर आप बोलते हो तो कर लेते हैं. Listen, beta. Again, I'm telling, if the answer will be in point, it will be very easy to learn the answers, whether these are long answer. अब जब long answers को आप डिटेल पैराग्राफ में लिखते हैं, you will find difficulty there to learn. तो इसीलिए conservation of minerals को भी आप points में लिखेंगे. You can write any 5 points. ठीक है. 5 points आप लिखिए, 5 points में अपना आंसर कंप्लीट कीजिए. For an example, पेज नंबर 133 पर आइए. A blue heading, which is the first paragraph, conservation of minerals. एक आपको हेडिंग मिलेगा. उस हेडिंग में आप नीचे देखिए, पैराग्राफ में आपको 2-3 पैराग्राफ गिवन है. उनमें से आप कोई 5 पॉइंट्स फाइंड आउट करके और आंसर लिखेंगे. For an example, first point you can write that mineral resources help to attain economic growth. Second point you can write the demand for mineral resources has been growing rapidly and that's why their usage also increases. So there is a need to conserve them. ठीक है.
थर्ड आप फिर लिखेंगे कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज. सो in this format you can make 5 points and you can complete your answer. Page number 133, mark conservation of minerals completely. अब आपको बनाने हैं उसमें से कोई भी 5 points जो आप लिखना चाहते हैं. Get the answer? Yes, tell me. मैम ने तो मैम पॉइंट भी बना लिए. हमने बना लिए. Okay, fine. We are moving to the next question, that is, describe the natural gas found inside the earth. Natural gas. Natural gas is a conventional or a non-conventional source of energy? Yes, tell me. It is a conventional or non-conventional? Conventional. Yes, it is a conventional source of energy. So you can find your answer at page number 134. Page number 134 पे आइए. A heading is there, natural gas. You have to mark it from the first line. It occurs in association with petroleum. यहाँ से लेकर के till the last line of second paragraph. Generating electricity. ठीक है. तो natural gas जो आपका topic given है पेज नंबर 134 पे, you have to mark the both paragraph of natural gas. It occurs in association with petroleum in the same geological structures. यहां से आप मार्क करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ नेचुरल गैस से, और नीचे देखिए सेकेंड पैराग्राफ है. सेकेंड पैराग्राफ पे आइए. जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. मार्क अप टू हियर. डिड यू गेट द आंसर? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, Ma'am. The next question, which is describe the terms. ये आंसर डेफिनेटली मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ. दिस विल यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. दीज आर डिफाइन द टर्म्स. आप सबके डिफाइन लिख सकते हैं. व्हाट इज विंड एनर्जी, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाट इज टाइडल एनर्जी, व्हाट इज बायोगैस. एंड वन मोर थिंग, देयर इज नो नीड टू राइट कंप्लीट पैराग्राफ. ओनली डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज. चारों का डेफिनेशन देंगे, वो अपने आप लॉन्ग आंसर बन जाएगा. ठीक है. So there is no need to write complete paragraphs of natural gas, biogas, सबका डिटेल लिखने बैठ रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. सिर्फ डिफाइन देना है आपको. ठीक है. तो चारों जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, which is question number 6. How are coal and petroleum formed? Explain them. किस तरीके से कोल और पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको. So the answer you will find at page number 133. Come at page number 133. There is a paragraph, fossil fuels. फॉसिल फ्यूल आपको मिल जाएगा. फॉसिल फ्यूल में आपको मार्क करना है fossil fuel as coal, petroleum and natural gas are formed under the earth's crust. When dead plants and animals get buried, such matters forms fossil fuels in millions of years. आगे continue करेंगे with coal. Coal is an organic in nature. It is obtained from decayed plant which got buried under sediments. They decomposed and were compressed under subsequent deposits. In the course of time, due to action of heat and pressure, they transform into coal. Coal is known as fossil fuel. I hope you all got the answer, or should I repeat? मैम पूरा पैराग्राफ है ना? मैम पूरा है ना? पूरा है ना? पेट्रोलियम. Listen to me. देखो बेटा, पेज नंबर 133 पे आइए. You will find there fossil fuel. ठीक है. पेज नंबर
133. They'll find a heading of fossil fuel. ठीक है, ये जो fossil fuel वाला पैराग्राफ है, इसके साथ साथ आपको कोल वाला जो पैराग्राफ है, दोनों को मार्क करना है completely. Now you got the answer? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Moving on to the next question. चलिए next question पर आ रहे हैं. Next question is, explain the process of mining of minerals. Explain the process of mining of minerals. Did we get the answer? Yes, Devansh. Do you want to tell? You are raising your hand. चलिए बेटा पेज नंबर 129 पर आइए. Don't worry. I will tell you. You can mark it. Page number 129. Non-metallic mineral. Non-metallic mineral के नीचे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, the extraction of mineral. 6th paragraph on page number 129. स्टार्ट हो रहा है द एक्सट्रैक्शन से. मिला बेटा सबको? ठीक है, पेज नंबर 129, 6th paragraph, the extraction. Here you can find, you can mark. I'm reading it. आप mark करते जाइए. The extraction of mineral resources from the earth is called mining. The method of mining depends upon the depth at which the mineral is located. Surface mines, that is mines which are located, ये आपको complete mark करना है till the end. Digging deep wells called oil wells. ठीक है? The extraction of mineral resources. You got the answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, coming on to the next question, which is distinguish between hydroelectricity and geothermal energy. Hydroelectricity and geothermal energy. देखो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहाँ पर क्लियरली आपको पता है कि जियोथर्मल एनर्जी इज अ काइंड ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, whereas hydroelectricity is a conventional resource. बीच में से आपको डिवाइड करना है. वन लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे जियोथर्मल एनर्जी, और दोनों के पॉइंट्स में आप डिफरेंसेस करेंगे. ठीक है, पेज नंबर let me give you a hint. Page number 134 पर you can find hydroelectricity, a complete paragraph by the heading hydel power. I repeat, page number 134 you will find a heading hydel power. वहां से आप hydroelectricity के points लेंगे. And page number 135 पे you can find geothermal energy, the third fourth paragraph. तो geothermal energy के points आप उसमें से लेंगे. डिस्टिंग्विश करेंगे. डिस्टिंग्विश करने का तरीका बहुत क्लियरली हमें पता है. सेवरल क्वेश्चंस वी ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो. हियर यू कैन राइट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी और हियर यू कैन राइट जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, दोनों के पॉइंट्स लिखने हैं आपको. 1 2 3 4 5 पॉइंट्स एटलीस्ट आप लिखेंगे. इज इट क्लियर अप टू ऑल? 5 points. Repeat. Ma'am, repeat. Yes, Ma'am, ma'am. repeat. Okay, fine, beta. Let me repeat. Page number 134, you will find a paragraph hydel power. And page number 135, you can find geothermal energy. यहाँ लिख रही हूँ मैं नीचे, आप देख लीजिए. Hydroelectricity आपको मिल जाएगा page number 134. And it will be on page number 135.
डिस्टिंग्विश करने का तरीका हमें पता है, मिड में से क्लासिफाई कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे जियोथर्मल, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और दोनों के पॉइंट्स लिखेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, देखो, रेन वाटर or water stored in dams made them from a height, fall them from a height on turbines, the electricity generated by the process is called hydroelectricity. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंडली आप जियोथर्मल पे आ जाएंगे. जियोथर्मल में आप लिखेंगे the energy derived from the hot springs emission of dry or wet stream from hot rock at great depth is called geothermal energy. दोनों में डिफरेंसेस कर समझ में आ गया. डिफाइन के बेसिस पे नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए कि कहाँ कहाँ मिलते हैं. ठीक है, उनका यूसेज क्या है, इंडिया में कहाँ फाउंड होते हैं. These also you can make some points of the differences between hydroelectricity and geothermal energy. Did you get that now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine, beta. So here your chapter completes. So your question answers are completed. Now we will continue with the next chapter of civics. ठीक है? Yes, Eklavya, what do you want to ask? मैम यहाँ पे हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो हमको हाइडल पावर मार्क करना है. बेटा हाइडल पावर क्या है? द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी जनरेट फ्रॉम द वाटर, है ना. तो हाइडल पावर का मतलब क्या है? पानी हमारे लिए कैसे पावरफुल बन गया, वो कैसे पावर सोर्स है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है तभी तो पावर सोर्स है. ठीक है, पूरा पैराग्राफ आप कंसिडर कर सकते हैं हाइडल पावर वाला. ओके मैम. चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स. एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. द लास्ट चैप्टर इन सिविक्स वी डिस्कस वाज अंडरस्टैंडिंग लॉज. आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द जुडिशरी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट ऑर्गन्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है. द 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर दीज? The executive, the legislature, and the judiciary. These are the 3 different organs. ठीक है. In the second chapter, we had discussed about why do we need a parliament. Parliament is a place where both the houses pass different laws, formed different laws. ठीक है. तो ये जो फर्स्ट आपका है द लेजिस्लेशन, वो आपका कवर कर लेता है पार्लियामेंट्री सेक्शन. तो पार्लियामेंट जो हमने स्टडी किया that was related up to the legislature. Whereas if we talk about the executives, in the third chapter we had discussed understanding laws. Laws को maintain कराने का काम किसका है? The executive. The role of police, different acts how they use to maintain discipline. ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ा इन द थर्ड चैप्टर. नाउ हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द जुडिशरी. इफ द लॉज आर नॉट फॉलोड बाय द पीपल, व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू देम और व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय द जुडिशरी अगेंस्ट देम. अभी कोई क्रिमिनल है, क्राइम करके भाग रहा है, क्राइम करने के बाद में उसको अगर अरेस्ट कर लिया गया तो उस पर केस चलेगा, और वो केसेस जो भी हैं उनका जो जजमेंट होगा वो कहाँ होगा? इन द कोर्ट्स. तो ये जो कोर्ट्स द अथॉरिटी who takes decision on such cases, crime, property, any other, those are called judiciary. डिसीजन लेने का जो ये काम है, जस्टिस करने का जो काम है, वो किसका है? जुडिशरी का है. So in the chapter that what we are going to study is the judiciary. Here we will discuss about how many types of courts. Civil courts are there, या आपके monetary issues को handle करने वाले जो courts हैं वो criminal courts are there. ठीक है. तो different basis पर हम यहाँ पर discussion करेंगे और it will be easy to understand with help of a chart.
चार्ट पर थोड़ा सा लेट आएंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या डिस्कस करते हैं कि why there was a need for an independent judiciary. जुडिशरी हमें समझ में आया, जुडिशरी क्या है? द जुडिशरी रिमूव या द जुडिशरी स्ट्राइक ऑफ any law passed by the Parliament of India if it is against the provision of the Constitution. This is called judicial review. और ये judicial review की पावर किसके पास है? सिर्फ जुडिशरी के पास, ठीक है? तो if there is any law that has been made और अगर वो according to Constitution करेक्ट नहीं है तो उसका भी रिमूवल हमारा जुडिशरी कर सकता है, ठीक है? Why there was a need for an independent judiciary? तो देखो, the framers of our constitution have kept the judiciary independent of the legislature and executives. हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तो who were the framers of constitution? उन्होंने क्या डिसाइड किया कि the three different organs of the government, legislature, executive and judiciary. अब हम इसमें से जो legislature और executive है उनको किसी भी तरह अबाइड नहीं करेंगे या रिलेट नहीं करेंगे जुडिशरी से, लिंक नहीं करेंगे. जुडिशरी अपने आप में क्या एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स फॉर्म नहीं किया जा सकता बाय द लेजिस्लेशन और बाय द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है? और even if the executives are not working correctly or the legislation is not following the constitution, the judiciary is independent to take action against them also. Everybody is equal in the eye of the law. यही कहा गया है और जुडिशरी इसको क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है? So wherever politically appear person, politically powerful or affluent person, he is and a person who is a normal human being, दोनों ही जुडिशरी के लिए सेम है. अगर किसी भी तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट किसी क्राइम में होता है तो जुडिशरी का काम है सिर्फ जस्टिस करना, किसी तरीके का बायसनेस नहीं रखता जुडिशरी. इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी. सो that it can check the misuse of power. कहने का मतलब क्या है कि पॉलिटिकली एफ्लुएंट पर्सन भी अगर सेम है जुडिशरी के लिए तो वो किसी भी तरीके से अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगा. नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. जैसा कि मैंने बात किया अभी, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते. ऑल्दो दे हैव पावर टू मेक लॉ, टू फॉर्म लॉ, बट स्टिल दे कैन नॉट मेक अ लॉ सच is biased with their well-being. ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कोई लॉ फॉर्म किया जिसका फायदा सिर्फ गवर्नमेंट को है, जनरल पब्लिक को नहीं है, तो जुडिशरी उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है. इज इट क्लियर अप टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So here we had discussed about the need for an independent judiciary. क्यों है? अभी पता चल गया हमें independent judiciary, ताकि किसी भी तरीके से पावर का मिसयूज ना हो और एक डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहे सोसाइटी में, ठीक है? Nobody is powerful in front of judiciary. कोई उसके आगे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. So our Supreme Court took supreme decisions. ठीक है? Here we are talking about the structure of the judiciary. How many types of courts are there present in the country? किस किस लेवल पर जाकर के आप अपील कर सकते हैं if there is some problem regarding to the property? So in which court you will apply? You will file an application. अगर कोई क्रिमिनल केस है तो आप कौन से कोर्ट में जाएंगे? या अगर जजमेंट आपका डोमेस्टिक लेवल पर नहीं हुआ तो फिर आप कहाँ अप्रोच कर सकते हैं? सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स. तो
इट इज कॉल्ड द होल स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी. स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी कैसा है वो अभी एक चार्ट के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे. बिफोर दैट, यस हेमंत, यू आर रेजिंग योर हैंड. डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यस हेमंत. मैम सबसे पहले कोई भी मैटर होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, आगे अपील करने के लिए हाई कोर्ट, और मैम फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाते हैं या फिर कुछ और तरीके से होता है? देखो, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तक तो कोई केस तब जाता है जबकि वो बहुत एक्सेप्शनल केस है, इन द सेंस उसका डोमेस्टिक लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में जब डिसीजन नहीं हो पा रहा, तब जाकर के वो ट्रांसफर होता है. जनरली ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किए जाए. हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई केस है जो बहुत सालों से चला आ रहा है, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं हुआ, डिसीजन पेंडिंग होने की वजह से पीपल गॉट फ्रस्ट्रेटेड और फिर स्ट्राइक्स हो रहे हैं या मार्चेस हो रहे हैं, तो ऐसे में खुद से सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसको अपने अंडर ले सकता है. एक लीगल नोटिस सुप्रीम कोर्ट दे सकता है कि अब तक उस पर डिसीजन क्यों नहीं लिया गया, तो वो डायरेक्टली उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है. So yes, we are. Is it clear? Yes. Okay, fine. चलिए आगे आ रहे हैं हम. स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी. तो द इंडियन जुडिशरी इज सिंगल, इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड. ठीक है, सिंगल, इंटीग्रेटेड जुड़ी हुई है, यूनिफाइड है. दैट मीन्स आप डिफरेंट जो कोर्ट्स हैं वो एक सेंट्रलाइज फॉर्मेट है. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे आपके हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और उससे नीचे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं. तो कहीं ना कहीं ये सब बाउंड है, रिस्पॉन्सिबल है किसको? सुप्रीम कोर्ट को आंसर करने के लिए. तो कहने का मतलब एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है कि कहीं भी कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी मिलती है किसी भी फॉर्मेट में, तो दे आर लाइबल टू आंसर, दे आर बाउंड टू गिव एन आंसर टू सुप्रीम कोर्ट. उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ऐसी जो लापरवाही हुई किसी लोअर लेवल या सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो वो क्यों हुआ. दे आर आंसरेबल टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो इसीलिए इसको एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बोला गया है कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंट लेवल्स हैं उन सब को एक साथ जोड़ करके रखा गया है. ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपना इंडिपेंडेंट अलग है, हाई कोर्ट अपने डिसीजन अलग से लेगा, उसको किसी भी तरीके से जिम्मेदारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को आंसर करने की. ऐसा नहीं है. ठीक है, तो इट इज अ यूनिफाइड, सिंगल एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर. व्हाट? द जुडिशरी ऑफ इंडिया. It means that if a person is not satisfied with the judgment got in the lower courts, he or she can appeal to the higher court as well. The judiciary is organized hierarchically. Hierarchically समझते हैं आप? स्टेयर फॉर्मेशन जो होता है, हायरार्की बोलते हैं उसको हम. जैसे कि आप स्कूल में क्लासेस हैं, किसी एक ऑर्डर में चल रही है, आपने सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन ग्रैब करते हैं, 1st to 5th, उसके बाद में 6th to 10th, उसके बाद में आपका और 11th 12th. तो एक हायरार्की फॉर्म हुई है जो स्टेयर फॉर्मेशन होती है ना, दैट इज कॉल्ड हायरार्की. तो जैसे आपका लोअर लेवल पर आपके आ जाते हैं लोअर कोर्ट्स, जो कि आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, पंचायत अदालत हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसमें होते हैं ना सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, तो ये आपके कहलाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बाद में, जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टेयर फॉर्म करके फिर आपको इसको समझाती हूँ. देखो, हायरार्की का मतलब दिस वन. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जिनको कि हम न्यायिक अदालत, पंचायती राज या मुंसिफ कोर्ट्स जो हो गए, दोज आर सबऑर्डिनेट.
उसके बाद में आपका नेक्स्ट लेवल हाई जाता है और ये हो जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। देन आप आ जाते हैं, अगर यहाँ डिसीजन नहीं होता तो यू कैन अप्लाई योर इन हाई कोर्ट्स। और फाइनली विच इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ जजमेंट विच इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। यूनिफाइड या सिंगल स्ट्रक्चर हमने क्यों बोला? Because if anyone who is not satisfied with the work or the decision in subordinate, he can go to the district. वहां भी satisfied नहीं है तो और higher level पे वो जा सकता है। तो ये एक hierarchically organized किया गया judiciary है, ठीक है। अगर हम बात करें the apex body of justice which is our supreme court, तो this is situated in New Delhi, ठीक है। देश का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं हाईएस्ट कोर्ट है, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट एंड दिस इज इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट कम्स टू द हाई कोर्ट्स। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव अ हाई कोर्ट। ज्यादातर जितने भी स्टेट हैं उन सब में अपने क्या होता है, एक एक हाई कोर्ट होता है इन देयर कैपिटल्स, ठीक है। अब जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो कोर्ट है दैट आपका जयपुर में सिचुएटेड होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसी अदर स्टेट की तो उनका जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हर एक स्टेट का हाई कोर्ट होता है और ये हाई कोर्ट कैपिटल में जनरली स्टेब्लिश किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव अ हाई कोर्ट इन देयर कैपिटल। अ फ्यू स्टेट्स, कुछ एक ऐसे भी स्टेट हैं जो कि शेयर करते हैं हाई कोर्ट को, एंड दीज आर पंजाब एंड हरियाणा, बोथ हैव अ सेम हाई कोर्ट। तो जो दोनों केसेस होते हैं बिलोंग्स टू हरियाणा एंड पंजाब, जिनका कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, उन्हें कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? इन दी हाई कोर्ट विच इज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट हायरार्किकली अगर हम आ जाते हैं तो दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। So here I'm going to share a picture on your screen. It will be easy to understand that with the help of that flow chart. You can also check in your books this flow chart. From the Supreme Court till the subordinate court, all has been given here. Here you can check this. Supreme Court initially देखो बेटा in the upper of the picture you Supreme Court, क्योंकि Supreme Court सिर्फ एक ही है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं Supreme Court as a supreme body on each and every court, हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, सबसे ऊपर आपका एक ही कोर्ट है, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट एंड विच इज वन इन अ होल नेशन, ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। उसके बाद में आप देख रहे हैं नीचे आपको दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाद में सेकंड वन इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैव देयर हाई कोर्ट्स इन देयर कैपिटल। इसके बाद में हम हाई कोर्ट्स जो है वो फर्दर हमने क्लासिफाई किया है इन डिस्ट्रिक्ट और इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें इन्हीं हाई कोर्ट्स को फर्दर क्लासिफाई किया है मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट और प्रेसिडेंसी कॉज कोर्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉजेस। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं वहां आपके
अलग अलग बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस को लेकर के हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ केस वो ट्रांसफर किया जाता है आइदर इन द मजिस्ट्रेट, आइदर इन द सिविल और सेशन कोर्ट, और आइदर इन द प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट। ठीक है, तो वो मेट्रो सिटीज का जो फॉर्मेट है हाई कोर्ट का, वो कॉज ऑफ केस के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जिस तरीके का केस है उस तरीके की अथॉरिटी को वो रिस्पॉन्ड किया जाता है। ठीक है, अगर सिंपली हम सेंस में बात करें, इन डिस्ट्रिक्ट में क्या सीन है, देखो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट, these are also further classified as civil subordinate judge court, provincial small cause court and criminal session court. We know civil courts में आपका related to property issues है, money related issue है, वो सारे आपके सिविल कोर्ट में, या एनी काइंड ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि रेसिज्म को लेकर के, कास्टिज्म को लेकर के अगर कुछ ऐसा कॉज है तो उसके लिए आपका सिविल सबऑर्डिनेट जज कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है केस। प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी से रिलेटेड या डिस्ट्रिक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई इशू है, उससे रिलेटेड कोई केस है, तो वो प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। क्रिमिनल सेशन कोर्ट में आपका क्राइम केसेस जिसमें कि मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, ये वाली चीजें आती हैं, वो क्रिमिनल सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, और सिमिलरली इट इज इन मेट्रोपॉलिटन एरिया, लेकिन यहाँ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट है बजाय सबऑर्डिनेट जज कोर्ट के। फिर उसके बाद में वही है आपका सिविल सेशन कोर्ट जिसमें आपके मनी रिलेटेड या किसी भी तरीके का एनी अदर कॉज हो सकता है, वो यहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं। और प्रेसिडेंशियल स्मॉल कोर्ट में आपको पता ही जो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कॉज जो है वो आपके प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। क्रिमिनल कोर्ट्स in the center you can see that we had further classified the criminal session court into two categories. These are subordinate magistrate court or panchayat adalats. So we are aware that at village level, block level, it is not possible to maintain any to make a high court in the village. तो village area से वहाँ regular basis पर आकर के और hearing attend करना, this create a lot of cost. इसीलिए पंचायती लेवल पर पंचायत फॉर्म की गई है ताकि अगर कोई छोटा मोटा किसी तरीके का कोई अगर बहुत छोटा केस है, बहुत ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको सेशन कोर्ट्स तक जाना पड़े, तो जो मेन हाई कोर्ट तक आपको जाना पड़े, तो इसके लिए पंचायती अदालत फॉर्म की गई है। तो विलेज का छोटा मोटा केस है, विलेज में हो जाए वो पंचायती अदालत या सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं सबऑर्डिनेट कॉज दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सिर्फ एक फ्लो चार्ट आपको गिवन है यहाँ समझाने के लिए, बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं है, तो मैं भी सिर्फ आपको उतना लिमिटेड ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है कि नंबर ऑफ कोर्ट्स आर हियर, आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, बस उसी में ये सब कवर अप हो जाएंगे। आप इनके सब पार्ट जो नेम है, क्लासिफिकेशन, उसको लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज these are not a part of our syllabus. हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली आउटर फॉर्म में ही पढ़ेंगे, सुप्रीम, हाई, सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के फॉर्म में। ठीक है, so here we will start with the supreme court. What is supreme court? जैसा कि हमको पता ही है, this is the only a single authority or the highest court which is one in nation. एक ही है पूरी कंट्री में, और कहाँ सिचुएटेड है? इन द कैपिटल ऑफ द नेशन, इन न्यू दिल्ली। So the Supreme Court of India in New Delhi is the highest court of the land as established by the Constitution of India. Supreme Court का जो establishment है, इसका explanation हमें कहाँ मिलता है?
in the constitution. It was written by the framer of constitution that there should be a highest authority as judiciary to take decision regarding any case of unjust full law. So the Supreme Court is the guardian of Constitution and the highest court of appeal. अगर हम कोर्ट की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, वो एक सिंगल ली एस्टेब्लिश है, और सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? बिकॉज वॉट एवर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेंटेन दैट इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी लॉज फ्रेम किए गए हैं, उनको बनाए रखने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का. ठीक है. सो द ज्यूरिसडिक्शन, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी of the Supreme Court, these are also defined under our constitution. जिस कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करने के बारे में कहा गया, सिमिलरली उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या फंक्शन सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म कर सकता है, क्या उसके पास में राइट्स है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. सो द चीफ जस्टिस हेड द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होता है? यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं विद पेन, अंडरलाइन कर सकते हैं, वन लाइन क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो. ठीक है. So if I talk about the head of Supreme Court will be Chief Justice, Supreme Court. A maximum of 30 judge assist him. ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का हेड, यानी कि हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए ग्रुप ऑफ 30 जजेस विल बी देयर. ठीक है. एंड चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? तो द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस इज कंसल्टेशन विद दोज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट whom he deems necessary by the president. तो आपका जो चीफ जस्टिस यानी कि द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट. हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो है हमारे. ठीक है. विद हेल्प ऑफ व्हाट? जो इनको असिस्ट करने वाले जजेस हैं उनके साथ में मिलकर. ठीक है. Other judges are appointed by the president in consultation with the chief justice. चीफ जस्टिस को अपने साथ में कौन से जजेस चाहिए या वो किन को अपॉइंट करना चाहते हैं, इसका डिसीजन चीफ जस्टिस अकेले या इंडिविजुअली ना लेकर के प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके लेते हैं. ठीक है. तो टू बिकम अ जज, अगर अभी कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? व्हाट आर द रिक्वायर्ड क्वालिटीज टू बिकम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट? To become a judge of Supreme Court, besides being an Indian citizen, a person must be an advocate at a high court with a minimum 10-year experience or a high court judge with at least 5-year experience. ठीक है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ द नेशन. आप इंडिया के ही सिटीजन होने चाहिए, ये तो पहली प्रायोरिटी है. सेकेंडली, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज फॉर्म होना चाह रहे हैं तो आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एंड वर्क एक्सपीरियंस एज अ जज इन हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से नीचे अथॉरिटी कौन सी आती है? हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट में आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. बीइंग अ जज आपने काम किया हो 5 years तक, या आपने काम किया हो एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years. अगर आपने बीइंग एन एडवोकेट काम किया तो आपके पास में एटलीस्ट 10 years का, मिनिमम 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए.
या अगर आपने जज के तौर पे काम किया है तो आपके पास में मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टू बिकम व्हाट, टू बिकम चीफ जस्टिस, दैट मीन्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट का मतलब बेटा लॉयर, कविश, ठीक है। So once a person is appointed as a judge of Supreme Court, he can remain in office till he attains the age of 65. कहने का मतलब है maximum age up to when you can work, it is age of 65. Once a person is appointed as a judge of Supreme Court, he can remain in office. कब तक रह सकता है? At the age of 65. द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे पॉसिबल है, उसको कौन हटा सकता है, ये पावर किसके पास है? ठीक है, तो ये जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिवीजन, I'll ask some question from you and you'll answer that. So why there was a need of judiciary? बताओ आदित्य गंगवानी, क्यों जरूरत है बेटा जुडिशरी को फॉर्म करने की? ओके ईशान, टेल मी, यू रेज योर हैंड। Ma'am, to provide justice to the citizen and to protect their rights. Okay, and one more thing was there, to stop or to check the misuse of powers, right? Who will tell me the structure of judiciary? I told there are 4 main categories on the basis of which we can understand the structure. Who will tell me? चलो अभी बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, लेट मी ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड। मैं एक क्विक रिवीजन आपको यहाँ पर दे रही हूँ। क्यों जरूरी है बेटा? देखो, जुडिशरी जरूरी है, नीड क्यों है हमें जुडिशरी की? मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए? डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? टू ट्रीट ईच एंड एवरीवन इक्वल। और वो इक्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? दैट नोबडी इज मोर पावरफुल इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि जुडिशरी जो है उसके ऊपर किसी और का प्रेशर नहीं है। ये क्या करता है? टू मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, जुडिशरी। इसके बाद में आ जाता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की। अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी आपका बेसिकली 4 टर्म्स में इन हायरार्की ऑर्डर में आप समझ सकते हैं। इनिशियली आपके जो डोमेस्टिक लेवल पर है, दीज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके अलावा हमने बात किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट also we can say them. After it, if anybody is there who is not satisfied with the decision of these previous one, तो वो हाई कोर्ट पे जाकर के अपना केस फाइल कर सकता है। एंड आफ्टर हाई कोर्ट, सुप्रीम बॉडी इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज टोटली एन इंडिपेंडेंट वन, ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन है। बेसिकली अभी सुप्रीम कोर्ट पर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आपका जो हेड है क्या कहलाते हैं? चीफ जस्टिस कहलाते हैं। Who is head?
चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस जो है आपके, वो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है? बाय प्रेसिडेंट एंड विद हेल्प ऑफ या विद कंसल्टेशन विद द जजेस वर्किंग ऑन डिफरेंट पैनल्स। प्रेसिडेंट अलग अलग फॉर्मेट में काम करने वाले जो जजेस हैं असाइन करते हैं, उनको हेल्प करते हैं चीफ जस्टिस का सिलेक्शन करने में। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में इसको असिस्ट करने वाले टोटल कितने जजेस होते हैं साथ में जो असिस्ट करते हैं चीफ जस्टिस को? तो देयर आर 30 जजेस अलोंग विद चीफ जस्टिस हु वर्क इन सुप्रीम कोर्ट, या इसको असिस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ चीफ जस्टिस? क्वालिटीज क्या होनी चाहिए बताइए? देखिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, फर्स्टली सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए आपके पास में? बीइंग अ चीफ जस्टिस, आपको चीफ जस्टिस बनने के लिए वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज एन एडवोकेट आपने काम किया हो हाई कोर्ट में, in high court. If you had a work experience about 10 years, ठीक है, अगर एक एडवोकेट के तौर पे आपने काम किया है तो आपके पास में 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज अ जज आपने काम किया है तो आपके पास में 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब जाकर के आप क्या बन सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो एज ऑफ रिटायरमेंट इज 65 years. Is it clear up to all? I hope it is clear up to all. Thank you, ma'am. ठीक है बेटा, चलिए अब आपका जो क्लास है वो मैम विल कंटिन्यू एंड विल कंटिन्यू इन